Assalamu alaikum dear students. Welcome to the class of cloud computing. I'm your instructor Dr. Nazia Anwar from UE Faisalabad campus. In this lecture I will continue the discussion on overview of distributed computing. In the previous lecture we discussed the goals of distributed systems. Now we will look at the pitfalls of distributed computing, and then we will see the examples of distributed computing, and then we will see the paradigm shift from distributed computing towards deeply distributed applications. It should be clear by now that developing distributed systems, it is a very difficult task. हो सकता है, it can be a difficult task. कैसे? क्योंकि बहुत सारे issues जो हैं they must be considered at the same time, क्योंकि कम्प्लेक्सिटी जो है अगर उनको नहीं हम एट द सेम टाइम उन इश्यूज़ को नहीं देखेंगे तो कम्प्लेक्सिटी जो है वो अराइज हो सकती है. नेवरदलेस बाय फॉलोइंग अ नंबर ऑफ डिज़ाइन प्रिंसिपल्स distributed systems can be developed that strongly adhere to the goals we discussed in the previous lecture. However, distributed systems differ from traditional software because components are dispersed across our network. अगर हम इस डिस्पर्जन को जहन में नहीं रखें डिज़ाइन टाइम में तो क्या होगा कि ऐसे सिस्टम्स बनेंगे जो कि नीडलेसली कॉम्प्लेक्स होंगे और दे विल जो है वो उससे मिस्टेक्स अराइज होंगी और फिर जिनको बाद में पैचअप करना पड़ेगा. तो एक साइंटिस्ट है पीटर डच एट सन माइक्रोसिस्टम्स. He formulated these mistakes as the following false assumptions that everyone makes when developing a distributed application for the first time. Number 1 is the network is reliable. Number 2, the network is secure. Number 3, the network is homogeneous. And number 4, the topology does not change. And number 5, latency is 0. Number 6, bandwidth is infinite. Number 7, transport cost is 0. And last but not the least, there is one administrator. Note how these assumptions relate to properties that are unique to distributed systems, such as reliability, security, heterogeneity, and topology of the network, latency and bandwidth, transport cost, and finally administrative domains. जब आप कोई नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हों then many of these issues will most likely not show up. Basically, distributed systems or the distributed computing is all around us. Google search engine, Amazon platform, Netflix, lectures, online gaming, money transfer, online banking, World Wide Web, crowdsourcing, internet, intranet and peer-to-peer networks, email systems, cloud file backup or storage systems, electronic banking, travel reservation systems, distributed supercomputers, grid computing, cloud computing, and the list goes on. The simplest example of a distributed system is a client-server model. Now we look at paradigm shift toward deeply distributed applications. 30 years ago, central computing unit accessed from terminals with a minimum of resources. With the introduction of the personal computers, a tremendous increase in the resources available at the client side.
आज से तकरीबन 40 ईयर्स पहले सेंट्रल कंप्यूटिंग होता था, जिसको टर्मिनल्स के साथ आप एक्सेस कर सकते थे, सिर्फ थोड़े से मिनिमम रिसोर्सेज रिक्वायर होते थे। लेकिन जब पर्सनल कंप्यूटर्स यानी पीसीज आए तो रिसोर्सेज जो है वो उनमें बहुत ज़्यादा ट्रिमेंडस इंक्रीज़ हुआ, और क्लाइंट साइड पर जो रिसोर्सेज अवेलेबल थे उनमें बहुत ट्रिमेंडस इंक्रीज़ हुआ। लेकिन जो और साथ ही जो सर्विसेज जो थी जो कि क्लाइंट हार्डवेयर पर प्रोवाइड की जा सकती थी उनमें भी उसी तरह ट्रिमेंडस इंक्रीज़ हुआ। तो अब लास्ट 10 ईयर्स में कनेक्टिविटी भी बहुत इंक्रीज़ हुई है। Therefore, applications do not need to be standalone and can benefit from the available connectivity for additional interaction or just to benefit from extra computational power deployed in data centers। क्योंकि बहुत ज़्यादा दुनिया में कंप्यूटिंग पावर्स हैं जो कि जिसको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का पर्पस ये है कि आपकी एप्लीकेशंस जो हैं, अब हमें ज़रूरत नहीं है कि हम उनको स्टैंड अलोन रखें, बल्कि हम अवेलेबल कनेक्टिविटी से फ़ायदा उठाते हुए तो हम एक्स्ट्रा कंप्यूटेशनल पावर जो है वो किसी भी डाटा सेंटर्स में जो डिप्लॉय की गई है उससे हम बेनिफिट उठा सकते हैं। क्लाइंट मशीन्स ओनली एक्ट एज पावरफुल टर्मिनल्स। We may quickly find scenarios that resemble the typical deployment 40 years ago, but now on a global internet scale, it is available anytime, anywhere। इससे क्या फ़ायदा हुआ कि अगर 40 इयर्स पहले अगर आप देखें तो आपको जो है वो इतनी ये नहीं था, ये हमें ये सहूलत नहीं थी कि आपको हर जगह पे एनी टाइम एनीवेयर जो है वो आप अपनी प्रोसेसेस को डिप्लॉय कर सकें, अपनी एप्लीकेशंस को डिप्लॉय कर सकें। अब हम जो है वो अब कहीं से भी बैठ के अपनी एप्लीकेशंस को डिप्लॉय कर सकते हैं, हमें स्टोरेज इजीली अवेलेबल है। तो आप जो है वो बहुत इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो तकरीबन एलिमिनेट हो गई है। ये बहुत कम इनिशियल इन्वेस्टमेंट से आप कहीं पर भी ईजिली किसी भी जगह से एट एनी टाइम आप अपनी एप्लीकेशंस को डिप्लॉय कर सकते हैं। सर्विसेज जो है वो उनको ईजिली सपोर्ट स्केल अप कर सकते हैं और थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ यूज़र्स जो है वो उन सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। The infrastructure that supports these services is now an extremely complex distributed system. We need professionals that are able to design and implement the mechanisms and the software that provide it. This is where PhD and master students will find their role. But the main problem is scalability. So it should do so while maintaining the image of an increasingly powerful single computing machine. तो इसके लिए क्लाउड कंप्यूटिंग और जो रिलेटेड पैराडाइम्स हैं, कंप्यूटिंग पैराडाइम्स कंसेप्ट्स हैं, जैसे कि ग्रिड कंप्यूटिंग, यूटिलिटी कंप्यूटिंग, वॉलंटरी कंप्यूटिंग, यूबिक्विटस कंप्यूटिंग जो है वो उन पर बहुत ज़्यादा एकेडेमिया और इंडस्ट्री में काम हो रहा है। A cloud is an elastic execution environment of resources, computational and storage, involving multiple stakeholders and providing a metered service, pay only for what you use, at multiple granularities for a specified level of quality of service. The definition of cloud computing provided by the National Institute of Standards and Technology (NIST), as it covers, in our opinion, it covers all the essential aspects of cloud computing. NIST definition हमने पहले भी डिस्कस की है, that cloud computing is a model for enabling convenient on-demand network access to a shared pool of configurable computing resources, for example networks, servers, storage, applications and services that can be rapidly provisioned and released with minimal management effort or service provider interaction. Elasticity is the ability to scale resource usage up and down rapidly according to instantaneous demand. यानी जैसे ही आपको डिमांड हो आप उसके मुताबिक रिसोर्सेज एक्वायर कर सकें और उनको रिलीज़ कर सकें। तो क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है अगेंस्ट स्केलिंग अप एंड डाउन ऑफ रिसोर्सेज। Volunteer computing is a type of distributed computing in which people donate their computers, unused
रिसोर्सेज टू अ रिसर्च ओरिएंटेड प्रोजेक्ट। जो लोगों के अपने कंप्यूटर्स के अनयूज्ड रिसोर्सेज होते हैं वो किसी भी रिसर्च ओरिएंटेड प्रोजेक्ट में डोनेट करते हैं, और ये तकरीबन मिड 1990s में ये प्रैक्टिस स्टार्ट हुई थी, और इससे जो है बहुत फ़ायदा हो सकता है। आप अपनी प्रोसेसिंग पावर्स जो हैं, जो ईजी अवेलेबल हैं, मुनासिब प्रोसेसिंग पावर जो है वो रिसर्चर्स को अवेलेबल हो जाती हैं बहुत मिनिमम कॉस्ट पर। वॉलंटियर कंप्यूटिंग जो है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे इसके रीज़न्स हैं। बहुत सारे ह्यूज नंबर ऑफ पीसीज जो हैं वो वर्ल्ड में है, दुनिया में हैं, कह सकते हैं बिलियंस ऑफ पीसीज हैं। तो वॉलंटियर कंप्यूटिंग जो है इट कैन सप्लाई मोर कंप्यूटिंग पावर टू साइंस देन डज एनी अदर टाइप ऑफ कंप्यूटिंग, क्योंकि इससे ये होता है कि साइंटिफिक रिसर्च जो है वो पॉसिबल होती है जो कि अदरवाइज़ पॉसिबल नहीं है। वॉलंटियर कंप्यूटिंग को आप ख़रीद नहीं सकते, इसको अर्न करना होता है। कोई भी रिसर्च प्रोजेक्ट जो है जिसकी अनलिमिटेड फंडिंग जो है हो और उसकी बहुत लार्ज पब्लिक अपील हो, तो उसको जो है वो ह्यूज कंप्यूटिंग पावर जो है वो गेट कर सकता है। तो ये आप कह सकते हैं कि इसके बरक्स जो ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स हैं वो बहुत एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव होते हैं। सुपर कंप्यूटर्स, ट्रेडिशनल सुपर कंप्यूटर्स जो हैं दे आर एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव एंड दे आर अवेलेबल ओनली फॉर एप्लीकेशंस दैट कैन अफोर्ड देम। जैसे कोई न्यूक्लियर वेपन डिज़ाइन है या एस्पियोनाज है, तो उसके लिए तो वो ट्रेडिशनल सुपर कंप्यूटर्स हायर कर सकते हैं, जबकि लेकिन जो आम जो रिसर्च पर्पज़ के लिए कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं या साइंटिफिक कम्युनिटी है उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो वो वॉलंटियर कंप्यूटिंग के थ्रू अपनी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अपनी रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं। The Berkeley Open Infrastructure for Network Computing (BOINC) is an open source middleware system for volunteer and grid computing. जो Berkeley Open Infrastructure for Network Computing जो है ये एक ओपन सोर्स मिडलवेयर सिस्टम है जो कि वॉलंटियर या ग्रिड कंप्यूटिंग आपको प्रोवाइड करता है। ये एक यूज़फुल प्लेटफॉर्म है बहुत सारे एरियाज़ में एप्लीकेशंस को रन करने के लिए, जैसे कि मैथमेटिक्स, मेडिसिन, बायोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी एंड एस्ट्रोफिज़िक्स। इस जो मिडलवेयर है या प्लेटफॉर्म है, इसका पर्पज़ ये है ताकि रिसर्चर्स जो हैं वो दुनिया में जो बहुत सारे पर्सनल कंप्यूटर्स हैं और उनकी प्रोसेसिंग पावर जो अनयूज्ड हो रही हो उसको यूटिलाइज़ कर सकें। Berkeley Open Infrastructure for Network Computing is software that can use the unused CPU and GPU cycles on a computer to do scientific computing. What one individual does not use of his her computer. तो इस तरह की जो unused resources हैं उसको ये प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा होता है। हम अब देखते हैं कि वॉलंटियर कंप्यूटिंग को ग्रिड कंप्यूटिंग से आप कैसे कंपैरिजन इसका कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप ग्रिड कंप्यूटिंग को कैसे डिफाइन करते हैं। बेसिकली जो टर्म ग्रिड कंप्यूटिंग है इट जनरली रेफर्स टू द शेयरिंग ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्सेज विद इन एंड बिटवीन ऑर्गेनाइजेशंस विद द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। दैट इज़ ईच ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रोड्यूसर भी हो सकता है रिसोर्सेज का और कंज्यूमर भी हो सकता है। जैसे कि इलेक्ट्रिकल पावर ग्रिड होती है तो बहुत सारी इलेक्ट्रिकल कंपनीज होती हैं, वो इलेक्ट्रिक पावर को सेल भी कर सकती हैं, बाय भी कर सकती हैं किसी दूसरी कंपनीज़ को। तो डिमांड के मुताबिक, जैसे भी डिमांड फ्लक्चुएट हो रही होती है, बढ़ रही होती है या कम या ज़्यादा हो रही होती है। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो म्यूचुअली अकाउंटेबल होती हैं। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन मिसबिहेव करे तो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रिस्पॉन्ड करती है, वो उसको स्यू कर सकती है या अपनी रिसोर्सेज उसको शेयर करने से रिफ्यूज़ कर सकती है। तो ये वॉलंटियर कंप्यूटिंग से ग्रिड कंप्यूटिंग जो है वो डिफरेंट होती है। डेस्कटॉप ग्रिड कंप्यूटिंग जो है जिसमें डेस्कटॉप पीसीज को किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज़ करते हैं, वो कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक वॉलंटियर कंप्यूटिंग से सिमिलर होता है, लेकिन उसमें जो है वो अकाउंटेबिलिटी होती है और उसमें जो है वो एनोनिमिटी और अकाउंटेबिलिटी जो है होती है और एनोनिमिटी जो है वो नहीं होती। और कह सकते हैं कि जो ग्रिड कंप्यूटिंग है और वॉलंटियर कंप्यूटिंग ये डिफरेंट होती है। Grid computing is a type of distributed computing that combines the resources of interconnected groups
of several independent computers that communicate through the use of a network in a way that makes them look and act like a single computing entity. यानी बेसिकली ग्रिड कंप्यूटिंग में हम पहले भी डिस्कस कर सके हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग पैराडाइम है जिसमें बहुत सारे रिसोर्सेज जो कि इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स के हो सकते हैं उनको इंटरकनेक्ट किया जाता है और उनमें कम्युनिकेशन कैसे पॉसिबल होता है किसी भी नेटवर्क के थ्रू, और लेकिन वो आपको बिल्कुल इस तरह कनेक्ट किया जाता है डेट इट एक्ट लाइक अ सिंगल कंप्यूटिंग एंटिटी। और कोई भी टास्क जो है उसमें उसको ब्रेक किया जाता है स्मॉलर पीसेस में और डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है थ्रू आउट द अवेलेबल कंप्यूटिंग रिसोर्सेज फॉर एग्जीक्यूशन। तो उन पीसेस को जो है, जो आपने जिन पीसेस में टास्क को ब्रेक किया है उनको पैरेलल में प्रोसेस किया जा सकता है और एज अ रिज़ल्ट जो है वो उस टास्क की कंप्लीशन जो है दैट इज़ अचीव्ड इन अ स्मॉलर अमाउंट ऑफ टाइम। तो ग्रिड कंप्यूटिंग को हम कैसे यूज़ करते हैं? ये ग्रिड कंप्यूटिंग यूज़फुल होती है जब बहुत सारे एक्सपर्ट्स जो हैं वो ज़रूरत हो उनको किसी प्रोजेक्ट पे कोलैबोरेट करने का, जो जिनके पास ज़रूरी नहीं है कि कोई मीन्स हो कि इमीडिएटली वो अपने डाटा को शेयर कर सकें या रिसोर्सेज को किसी एक सिंगल साइट पर शेयर कर सकें। तो इससे क्या होगा कि चाहे वो किसी जियोग्राफिकल डिस्टेंसेस पे हों तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड टीम्स जो हैं वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपने रिसोर्सेज को और कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उस बड़े पर्पस को अचीव करने के लिए। सो दिस मीन्स दैट ऑल कंप्यूटिंग रिसोर्सेज डू नॉट हैव टू वर्क ऑन द सेम स्पेसिफिक टास्क बट कैन वर्क ऑन सब टास्क दैट कलेक्टिवली मेक अप द एंड गोल। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी रिसर्च टीम जो है वो कोई वेदर पैटर्न्स किसी एक रीजन के एनालाइज कर रही हो और कोई दूसरी रिसर्च टीम किसी दूसरे रीजन के पैटर्न्स को एनालाइज कर रही हो, तो वो दोनों रिजल्ट्स को कंबाइन करके एक कंप्लीट पिक्चर जो है वो उस वेदर पैटर्न की डिलीवर कर सकते हैं। Grid computing allows coupling of geographical distributed resources and provide inexpensive access to resources irrespective of their physical location or access point. The grid is in effect a set of software tools which, when combined with hardware, would let users tap processing power of the internet as easily as the electrical power can be drawn from the electricity grid. Examples of grids are TerraGrid, EGEE grid and TR grid. जैसे कि पावर ग्रिड है वो आप ये भी ग्रिड कंप्यूटिंग की में आप कह सकते हैं ग्रिड की एग्जांपल है। ये एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होता है फॉर डिलीवरिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स। जैसे कि ये यूरोपियन ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर है EGI, ये एक सीरीज ऑफ एफर्ट्स है टू प्रोवाइड एक्सेस टू हाई थ्रूपुट कंप्यूटिंग रिसोर्सेज। ये यूरोप में यूजिंग ग्रिड कंप्यूटिंग टेक्निक्स जो है वो कंप्यूटिंग रिसोर्सेज प्रोवाइड करने के लिए ये एक आप कह सकते हैं एक प्लेटफॉर्म है। और EGI जो है ये डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज़ में जो सेंटर्स हैं उनको लिंक करता है ताकि इंटरनेशनल रिसर्च को सपोर्ट करने में फैसिलिटेट करे और बहुत सारे साइंटिफिक डिसिप्लिन्स में ये सपोर्ट करता है। और बहुत सारे रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं जैसे कि इनेबलिंग ग्रिड्स फॉर ई-साइंस है जिसको जो है ये फाउंडेशन जो है EGI फाउंडेशन इसने इसको फंड किया है। और बहुत सारी साइंटिफिक जो इंटरनेशनल रिसर्च जो है बहुत सारी मैनी डिसिप्लिन्स जो है ये उसको बहुत सारी कंट्रीज़ में सपोर्ट कर रहा है। यूटिलिटी कंप्यूटिंग, यूटिलिटी कंप्यूटिंग जो है इट इज़ द पैकेजिंग ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्सेज सच एज कंप्यूटेशन, स्टोरेज एंड सर्विसेज एज अ मीटर्ड सर्विस। यानी आप यूटिलिटी कंप्यूटिंग कोई भी कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को यूज़ करना एज अ मीटर्ड सर्विस। ये मॉडल ऐसा ही है जैसे आप जो है वो इसमें जो है वो इनिशियल रिसोर्स जो कॉस्ट है वो आपकी तकरीबन नेग्लिजिबल होती है रिसोर्सेज को एक्वायर करने की।
बल्कि आप कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज को हायर करते हैं यानी रेंट करते हैं. This repackaging of computing services became the foundation of the shift to on-demand computing, software as a service and cloud computing models that further propagated the idea of computing application and network as a service. अब यूटिलिटी कंप्यूटिंग से ही एक ऑन डिमांड कंप्यूटिंग या क्लाउड कंप्यूटिंग का आइडिया आया है कि जिसमें आप कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को एज अ यूटिलिटी यूज़ करते हैं कि जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी है या आप वाटर घरों में यूज़ करें या टेलीफोन है जिसको एज यूटिलिटी यूज़ करते हैं कि जितना आपने यूजेज बेस पे या ऑन डिमांड यूज़ होता है कि जितना आपको चाहिए आप यूज़ करते हैं उसी के मुताबिक आपको बिल किया जाता है. क्लाउड कंप्यूटिंग is a model for enabling convenient on-demand network access to a shared pool of configurable computing resources. Cloud computing is not a fundamentally new paradigm. It draws on existing technologies. यानी ये एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज या अप्रोचेस पे बेस कर रहा है जैसे कि यूटिलिटी कंप्यूटिंग है या सेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग है, सेंट्रलाइज्ड डाटा सेंटर्स हैं, ये उसी पर ही बेस कर रहा है. What is new is that cloud computing combines and integrates these approaches. Cloud computing में इन सारी approaches को integrate कर दिया गया है. While grid computing is partly defined by its decentralized control, cloud computing seems to be a step back towards centralizing IT in data centers, again to economize and scale and scope. क्लाउड कंप्यूटिंग पे एज यू गो मॉडल है जिसकी वजह से यूज़र्स जो हैं वो सिर्फ उतना ही पे करते हैं जितना वो यूज़ करते हैं. दूसरा इसका बहुत इंपॉर्टेंट फीचर इलास्टिसिटी है जिसकी वजह से यूज़र्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल से स्टार्ट करते हुए ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डिप्लॉयमेंट जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम कर सकते हैं. एंड सिंपल इंटरफेस आपको ये प्रोवाइड करता है जिसके आप जो है वो अपने एग्जिस्टिंग सिस्टम्स को ईजिली इंटीग्रेट कर सकते हैं. क्लाउड कंप्यूटिंग में आप ईजिली माइग्रेट कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं अपने एग्जिस्टिंग IT इंफ्रास्ट्रक्चर को आप ईजिली कन्वर्ट कर सकते हैं या माइग्रेट कर सकते हैं इन अ क्लाउड कंप्यूटिंग, यानी डिप्लॉयमेंट ईजी है. Mobile computing and ubiquitous computing. The integration of small and portable computing devices into distributed systems. These devices include laptop computers, handheld devices, PDAs, mobile phones, pagers, video cameras and digital cameras, smartwatches, devices embedded in appliances such as cars, washing machines. Mobile computing basically क्या है? Mobile computing is when you bring the computer with you. Example of mobile computing is smartphone. And ubiquitous computing is intended to mean that small computing devices will eventually become so pervasive in everyday objects that they are scarcely noticed. Basically, ubiquitous computing is wherever you go, there is a computer you can use. Example of ubiquitous computing is internet. You can use computing at the internet cafe, at mainframe terminals. और pervasive computing क्या है? Pervasive computing is when computers are everywhere inside all things, maybe also within you. Example of pervasive computing is IoT. यानी देखते हैं कि मोबाइल और यूबिक्विटस कंप्यूटिंग में क्या डिफरेंस है. मोबाइल कंप्यूटिंग में कंप्यूटर जो है इट मूव्स विद यू, जबकि यूबिक्विटस में यू हैव रिमोट टर्मिनल्स टू लॉग इनटू द सेम कंप्यूटर. यानी मोबाइल कंप्यूटर में कंप्यूटर आपके साथ साथ मूव करता है जैसे आपका स्मार्टफोन है, जबकि यूबिक्विटस कंप्यूटिंग में आप जो है रिमोट टर्मिनल्स जो हैं उनसे उन पर आप लॉग इन कर सकते हैं. किसी भी आपके पास रिमोट टर्मिनल्स होते हैं जिन पर आप लॉग इन करते हैं किसी भी सेम कंप्यूटर पर कर सकते हैं. और मोबाइल और परवेसिव कंप्यूटिंग में क्या डिफरेंस है. मोबाइल का मतलब है कि कंप्यूटर्स जो हैं वो इतने स्मॉल और लो पावर होते हैं कि उनको आप अपने साथ हर जगह पे कैरी कर सकते हैं, जबकि परवेसिव का मतलब ये है कि वो इतने टाइनी और चीप होते हैं दैट दे कैन बी प्लेस्ड इनसाइड थिंग्स दैट could need one. एंड परवेसिव और यूबिक्विटस कंप्यूटिंग में क्या डिफरेंस है. बेसिकली यूबिक्विटस कंप्यूटिंग
maybe only computer with multiple access points and shared user space. जैसे कि क्लाउड कंप्यूटिंग को यूबिक्विटस कंप्यूटिंग जो है वो आप उसमें यूजिंग यूबिक्विटस कंप्यूटिंग आप यूज़र स्पेस को शेयर कर रहे होते हैं जैसे कि क्लाउड कंप्यूटिंग, जबकि परवेसिव कंप्यूटिंग में कंप्यूटर्स आर एवरीवेयर बट दे डोंट हैव टू हैव अ यूज़र इंटरफेस और नेसेसरली बी कंट्रोलेबल बाय यूजर्स. So that was all about overview of distributed computing, and I hope this lecture was helpful. Thank you everyone for taking this lecture.